Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm a psychology mentor at Study Capital. In today's video, I'm going to be telling you about the 10 chapters which you cannot skip at any cost. So आप लोगों के लिए मैं काम और easy बता देता हूँ. You always ask me this question कि सर हमसे पूरी बुक पढ़ी नहीं जा रही, हमसे पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा जा रहा है. Tell me some shortcuts. So I know this is very early to tell these shortcuts, but again, if you are preparing by yourself, then these are the 10 chapters which you cannot speak. And मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जहाँ पे मैंने गेट के लिए बता रखा है कि कौन कौन से सिलेबसेस आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं. वो भी वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगा. एंड दिस इज फॉर द सीवीटी पर्पस. अगेन गेट और सीवीटी में ऑलमोस्ट सिलेबस सेम रहता है. सो अगर आप सीवीटी का एग्जाम दे रहे हो सो ऑल्सो प्लीज डू फिल गेट. मतलब बाय द टाइम आप जो वीडियो देख रहे हो कि गेट के डेडलाइंस हो चुके होंगे, निकल चुके होंगे, बट आई एम अज्यूमिंग कि आपने गेट का भी फॉर्म फिल किया होगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, let's start the video. And there's a very important announcement for you people. There is my new foundation batch, that is the Sankalp batch, which is going to be start from the November. So mid November से मेरा ये बैच शुरू होने वाला है. This is the one and only foundation batch that you will need to crack your favorite or the preferred university. Alright, in this batch you will be getting access to the live classes. And अगर आप live नहीं देख पा रहे हो तो recordings देख लेना. There is no need. Alright, then you will be having access to the PPT notes, the PDF notes, the interactive PPTs which are made by me. So मैं जनरली नोट्स नहीं बनवाता हूँ, राइट. आई वॉन्ट रिकमेंड यू टू रीड दीज बुक्स, दीज बुक, दीज बुक्स. बुक्स पढ़ने को मैं बताऊंगा, कहूँगा, बट देर इज अ सर्टेन पैटर्न टू इट. आई टेल यू इन द बैचेस कि किस तरह से बुक्स को पढ़ा जाता है. ऑलराइट, सो you will be having PDFs. All right, and I mentioned this thing in all my videos and I'm sure आपने एक वीडियो देखा भी होगा. This year's out of 75 questions, 74 questions came directly from my notes. So this is not a coincidence. हर साल ऐसा होता है कि 98-99% क्वेश्चंस मेरे एग्जैक्ट वर्बेटिंग नोट से ही आते हैं. सो नोट मतलब बेसिकली व्हाट कंटेंट आई डिलीवर. एंड दिस इज नॉट द केस कि आई विल गिव यू द कंटेंट ऑफ 2000-3000 पेजेस एंड देन आई विल क्लेम कि देखो देखो मेरे ही से ही पूरा कंटेंट आ गया. इट्स नॉट लाइक दैट. मेरे सारे नोट्स मिला के हार्डली 300 पेजेस होते होंगे. एंड दो 300 पेजेस कैन बी they can be like revised if you have gone through the lectures thoroughly. तो आपको लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से कवर अप करना है. देन यू विल बी गिवन एक्सेस टू द PYQ booklet. I'll be giving you PYQs booklet. I'll be giving you the MCQ PDF books, all those inclusive in the batch. इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस दिया जाएगा which is absolutely free if you're buying this batch. And this batch will be having one-on-one mentorship guidance, which basically means that you will be in direct contact with me. आपको कोई भी डाउट आ रहा है, there is no need to fill any Google form, there is no need to fill any email. आपको मॉडरेटर से बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टीम से बात करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू हैव एनी डाउट regarding to psychology or the batch or the preparation, you will be having my personal number. So जो पर्सनल नंबर मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स के पास है, वो नंबर आपके पास रहेगा. बिकॉज वी एट स्टडी कैपिटल ट्रीट एवरी सिंगल स्टूडेंट एज अ फैमिली. तो हम आपको अपना पर्सनल नंबर देते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होते हो, आप कोई भी डाउट अपना प्रिपरेशन रिलेटेड वहाँ पूछ सकते हो. इफ देयर इज सम अदर डाउट, टेक्निकल डाउट, हम आपको टेक्निकल टीम के पास रेफर कर देते हैं. सो दिस इज द हैंड होल्डिंग अप्रोच what we talk about in study capital. And I have personally qualified GATE examination, I have qualified UGC NET JRF examination, and back in 2021 I have secured all India ranks in BHU, DU, Jamia, Allahabad University, Pondicherry University, and many more. So these are my credibilities, and this is a foundation batch, which means ये आपको what is psychology, why science and psychology are getting together, why psychology is a science. यहाँ से हमारा क्लास शुरू होता है. Very basics, the basics of the basic, and then I'll make you go through advanced topics, right? So these are all the benefits. And there's one important thing. If you want to just pay and forget thing, right? This is the Mahayodha batch which is live right now. So Sankalp batch आपका November से start होगा. This is the Mahayodha batch which is live right now. आप अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो. Classes at 8 PM every day.
ये बैच परचेस करने में आपको सारे अपकमिंग बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे. So if you purchase the Mahayodha batch, you will be having access to all the content of Sankalp batch. सब कुछ सेम रहेगा. There is another special MCQ batch, which is a 30-day MCQ batch, जिसमें मैं आपको 1000 specific topic questions and overall 3000 MCQs live solve कराता हूँ. So I always say this thing that MCQ solving is not just something which you can do with knowledge itself. It is an art, and I'll teach you that art. वो मास्टरिंग स्किल की कैसे आप MCQs को सॉल्व करते हो. सो इफ यू बाय दिस महायोद्धा बैच, यू विल बी हैविंग एक्सेस टू ऑल माय अपकमिंग बैचेस. एंड अगर आप संकल्प बैच करते हो तो आपको सिर्फ वो फाउंडेशन बैच का एक्सेस दिया जाएगा. एंड ऑब्वियसली इसके वीडियोस कंटेंट आपके पास रहेंगे टिल द एग्जाम. ऑलराइट, सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. नाउ वी कैन स्टार्ट विद द वीडियो. ऑलराइट, सो what are the 10 topics which are important for the CUET examinations which you cannot skip? कौन से वो ऐसे 10 चैप्टर है जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सेल्फ, राइट? फर्स्ट थिंग विल स्टार्ट विद द रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड साइकोलॉजी. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्लीज डू नॉट ट्रस्ट दिस थिंग. अगर कोई बोल रहा है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये नहीं आता क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं होता है. देयर इज नो एज सच प्रेडिक्टेबिलिटी. आई हैव ट्राइड टू डेवलप सम ट्रेंड्स, right, with the help of all the papers I had, with the help of the prompts I gave to ChatGPT, with the help of all the papers I uploaded to ChatGPT, and I asked him कि आप कुछ ऐसा करो कि मुझे पैटर्न पता चले, because they were like 5-6,000 questions, तो मैं मैनुअली उसको नहीं कर सकता था. So it gave me some patterns, but again I don't trust ChatGPT, I don't trust anything. तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना है. ये नहीं है कि इसके टॉपिक नहीं आ रहा है इसको नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है. सो रिसर्च मेथोडोलॉजी में बेसिकली आपको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कवर करनी है. दैट्स वेरी बेसिक थिंग. देन आपको इसके साथ साथ कवर करना है कोरिलेशंस, सर्वे, केस स्टडीज, वेरिएबल्स, सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होती हैं, ऑलराइट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एंड आपको एग्जांपल्स के साथ जाना है. ऑलराइट, मॉक डेटा इंटरप्रिटेशन, व्हिच मींस इफ यू आर सॉल्विंग वेरिएबल्स, give examples to yourself. What is the example of dependent variable? What is the example of independent variable? आप कोरिलेशंस की बात कर रहे हो, ट्राई टू मेक द एग्जाम्पल्स. इफ आई एम ओपनिंग अ लैपटॉप, देयर इज रेन गोइंग ऑन, तो मेरे लैपटॉप ओपन करना और बारिश हो जाना, पॉजिटिव कोरिलेशन है. इस तरह के आपको एग्जाम्पल्स बिल्डअप करने पड़ेंगे. सो दैट्स फॉर द रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी. फिर देयर इज स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजिकल मेजरमेंट. सो स्टैटिस्टिक्स है, आई नो बहुत सारे लोग डरे हुए होते हैं, बट देयर इज नो नीड टू वरी. रिसर्च इन स्टैटिस्टिक्स इज माई स्पेशलिटी. I guarantee this thing on the open platform. If there is anyone who is fearing mathematics, statistics and research, कोई भी ऐसा है जिसको डर लग रहा है, by the end of my batch you will be not having any single percentage of fear. So that is my open platform guarantee, and I've been saying this with a long time कि research को पढ़ना नहीं होता है, research को समझना होता है. If I can make you feel the research, then there is no need to fear from the research. तो आपको क्या पढ़ना है? आपको इसमें पढ़ना है मीन, मीडियन, मोड, एसडी, कोरिलेशंस, टी टेस्ट, अनोवा. टी टेस्ट और अनोवा की कैलकुलेशंस आपको नहीं पढ़नी है. दिस फॉर द स्पेसिफिकली थिंग, यू जस्ट हैव टू गो द थ्योरी पार्ट. मीन, मीडियन, मोड आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन, वेरिएंस सब आना चाहिए. कोरिलेशंस के कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट हैव द थ्योरी एंड द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. फिर रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड आइटम एनालिसिस. इसमें एक नॉर्म्स भी ऐड कर लो. देयर इज वन थिंग दैट नॉर्म्स, ठीक है. सो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स, ये तीन चीजों को आप स्किप नहीं कर सकते हो. इनके टाइप्स क्या हैं, व्हाट आर देयर एग्जांपल्स, व्हेन दे आर यूज्ड, व्हाट आर देयर प्रोज एंड कॉन्स, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. Then with the biological basis of behavior, you have to study the nervous system. All right, you have to study the details of the neurons, parts of the neurons such as axon, cell body, axon terminals, nodes of Rahenwehr. ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है. इनका फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं, ब्रेन लोब्स आपको पढ़ना है. वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से लोब्स होते हैं, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, देन आपका ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है. ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है. देन न्यूरोट्रांसमीटर्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, सिंपल है. एंड व्हाट इफ दे गो अप एंड डाउन, व्हाट इफ देयर लेवल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, क्या प्रॉब्लम होती है, ये आपको पढ़ना है न्यूरोट्रांसमीटर्स में. एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंस. So hormonal influence is basically the endocrine system. So again, hormones क्या हैं, function क्या है, what if hormone increases, decreases, क्या होगा उससे, ठीक है.
This thing is very important. This thing is very important. Relate brain functions to behavior. आप मेडिकल की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप नीट की तैयारी नहीं कर रहे हो. आई नो देर आर लॉट ऑफ व्यूअर्स हु हैव प्रिपेयर्ड फॉर द नीट एंड दे नो अ लॉट ऑफ information about the brain. They probably know a lot than me. Obviously, thing is एग्जाम में ज़रूरी नहीं है ये. तो आपको ब्रेन को, एनाटॉमी को, नर्वस सिस्टम को एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, विच इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी. साइकोलॉजी में चीज़ें कैसे हो रही हैं, यू डोंट हैव टू गो इन वेरी मच डिटेल अबाउट द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. आपको सिर्फ सरफेस लेवल पे काम की चीज़ें पढ़नी है. एंड इन माई नोट्स यू विल बी गेटिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स कि ये चीज़ें एग्जाम में आ रखी हैं, इनको पढ़ना है. देयर इज नो like such as garbage in anything. कुछ आपको unnecessary नहीं पढ़ना है. My simple strategy is minimum efforts, maximum output. काम कम करना है, efforts बहुत ज़्यादा आना चाहिए, because exam is not about just knowledge. Exam is only and only about scoring. Knowledge आपको बहुत ज़्यादा है, number exam में नहीं आ रहे, there is no use. अभी क्या करना है, score करना है. So I'll teach you score कैसे कर सकते हैं, but ये मेरा secondary purpose है. I always say this thing in my batch that कि आपके अच्छे नंबर आए, that is my secondary purpose. My primary purpose is to make you understand psychology. ये आ जाएगा तो secondary purpose automatically पूरा हो जाएगा, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे. Then cognitive process, very important topic, बहुत emerging topic है. इसमें आपके काफी सारे questions हैं, जैसे attention, types of attention, theories, deficits, cocktail party effect, सब कुछ इसमें आता है. perception, theories, 7-8 थ्योरीज हैं, पढ़ लेना. ठीक है, गूगल कर सकते हो, चैट जीपीटी कर सकते हो. इफ यू आर इन द बैच, नो नीड टू वरी, आई गॉट यू. मेमोरी, काफ़ी सारी थ्योरीज हैं. स्टोरेज की मेमोरीज हैं, एनकोडिंग की मेमोरीज हैं, रिट्रीवल की मेमोरीज हैं. देन यू हैव टू स्टडी फॉरगेटिंग ऑल्सो. थिंकिंग, लैंग्वेज. सो लैंग्वेज को जनरली मैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ाता हूँ, बट अगेन पढ़ना तो है, कहीं भी पढ़ो. ठीक है, तो पढ़ना तो है. सो थिंकिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है, डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या क्या होते हैं, लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है. ठीक है, वाइगॉस्की की थ्योरी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है. देन लर्निंग एंड कंडीशनिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, गेट के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड देयर इज अ रीजन कि मैं अपने बैचेस में भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ाता हूँ, बिकॉज देयर इज ओनली वन क्वेश्चन एंड दिस इज माई सिंपल फिलॉसफी. मेरा एम ये नहीं होता है कि आप लोग 75 के 75 क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, ऐसा एम नहीं होना चाहिए. एम आपका ये होना चाहिए कि इफ़ यू हैव स्टडीड ओनली 10 टॉपिक्स, 9 टॉपिक्स आने चाहिए. दैट इज माई फिलॉसफी. अगेन सिंपल है, मेरा काम है आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाना जो एग्जाम में पूछी जाती हैं. I will not waste your efforts in studying something which has been asked only one or twice in the 10 years. तो 10 साल में जिससे एक या दो क्वेश्चन आए हैं, उस पर इतना एफर्ट्स वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई लाइक वैल्यू योर एफर्ट्स मोर दैन यू डू. दैट्स द रियलिटी. आपको नहीं पता है चीज़ें किस तरह से करनी है, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर न्यू टू दिस. मैं भी जब न्यू था मुझे नहीं पता था. आई हैड अ वेरी फॉर्चुनेट पास्ट टू हैव सच अ गुड सीनियर्स, दे गाइडेड मी. बट बहुत लोग के साथ ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो अननेसेसरी एफर्ट्स में टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं. टाइम बहुत ज़रूरी है, एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है, कॉग्निटिव रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं, सोच समझ इनको खर्च करना. देन मोटिवेशन एंड इमोशन में आपके सिंपली थ्योरीज आ जाएंगी. ऑलराइट, सच एज मास्लो, मैक्लेलैंड, एंड और भी बहुत सारी थ्योरीज होती है, सच एज हर्जबर्ग्स की थ्योरी. देन यू हैव एक्स एंड वाई थ्योरी. देन यू विल बी हैविंग मैस्लो हो गया, मैस्लो से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो इस तरह की बहुत सारी थ्योरीज हैं आपकी. इक्विटी थ्योरी हो गई, गोल सेटिंग थ्योरी हो गई, राइट. देन देयर इज ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस कॉन्सेप्ट. तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है. इमोशन में भी आपको चीज़ें पढ़नी है, बेसिकली दैट जेम्स लैंड की थ्योरी, कैनन बार्ड, लजारस, शाटर सिंगर. फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में यू हैव टू स्टडी अबाउट द सेंसेशन, सेंसरी लॉस, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है ना, साइकोफिजिक्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है. Then for the personality theories, there are actually 10 to 12 theories in personality. You simply have to remember किसने कौन सी theory दी. Simple है. Who gave which theory? ये आपको याद रखना है, फाउंडर्स के नेम याद रखने हैं, एंड उस थ्योरी में इंपॉर्टेंट क्या क्या पार्ट्स थे. दैट्स ऑल. आपका पर्सनालिटी खत्म. बहुत कन्फ्यूजन होती है पर्सनालिटी में, बिकॉज देर आर सो मेनी पर्सनालिटीज. थ्योरी, ठीक है, बिग ओशन, एट कैटल, एल्बर्ट, आइसेंक,
हॉफस्टेड, बहुत सारे लोग हैं, तो कन्फ्यूजन होती है इसलिए। बट अगेन सिंपल है, किसने कौन सी थ्योरी दी है याद रखना है, उस थ्योरी का क्या 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसी से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। इफ यू डोंट बिलीव मी, गो सी द PYQs। PYQs आर द लाइट ऑफ व्हाट योर फ्यूचर। PYQs को देखो, लिसन टू मी अगेन, डू द फॉलोइंग थिंग्स, यू आर सॉर्टेड। चीज़ों को बहुत सिंपल रखना है, लाइफ ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो वी कैन ऑलवेज ट्राई टू मेक लाइफ लिटिल बिट easier. Then developmental psychology में you will be having Piaget, Vygotsky, Kohlberg, Erikson. Piaget very important. Piaget की 4 stages of development, that is sensory, motor, pre-operational, concrete, formal. बहुत अच्छे से याद कर लेना. What are the important things which are going on these stages? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सुपर इंपॉर्टेंट. कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की स्टेज याद करना बहुत ज़रूरी है. एरिक एरिक्सन की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट याद कर लेना बहुत ज़रूरी है. साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, ठीक है, बिल्कुल भी भूलना नहीं इसको. देन सोशल साइकोलॉजी, आई नो बिफोर यू बॉम्बार्ड मी विद द थिंग कि सर CUET में सोशल साइकोलॉजी नहीं है, आई नो, बट ये वीडियो सिर्फ CUET के लिए नहीं है. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू आर गिविंग द गेट, जामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, क्राइट्स, NFSU एट्सेट्रा. तो CUET के अलावा जो भी इंडिया में नेशनल लेवल साइकोलॉजी PG एंट्रेंस होते हैं, हर चीज़ में मेरा बैच आपको हेल्प करेगा. बिकॉज आई टीच यू साइकोलॉजी नॉट स्पेसिफिकली फॉर CUET. मेरा काम है आपको साइकोलॉजी सिखा देना ताकि आप हर एग्जाम में स्कोर सको. अगेन मिनिमम एफर्ट, मैक्सिमम आउटपुट. ऑलराइट, सो इन सोशल साइकोलॉजी, एटीट्यूड, प्रेजुडिस, कंफर्मिटी, लीडरशिप थ्योरीज, ग्रुप डायनेमिक्स, ठीक है. एटीट्यूड टाइप्स हो गए, प्रेजुडिस टाइप्स हो गया, कैसे इसको सॉल्व करते हैं. कंफर्मिटी, क्या क्या फेमस एक्सपेरिमेंट्स हैं ऐश का और शेरिफ का. लीडरशिप की थ्योरीज का क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपका इसमें कवर हो जाएंगी. लास्ट थिंग, एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी विच इज लाइक साइकोपैथोलॉजी. सारे डिसऑर्डर्स आपको पढ़ने हैं. अगेन सिंपली रिमेंबर दिस थिंग, डू नॉट स्टडी क्राइटेरिया. अगेन आई रिपीट, डू नॉट स्टडी क्राइटेरिया. क्राइटेरिया से आज तक 10 साल में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है. सो until unless you have a very bad luck, they are not going to ask this year also, ठीक है. who knows, कोई मेरा वीडियो देख ले तो पूछ ले, 10 साल में तो नहीं पूछा गया है. सो दे विल ऑलवेज आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द सिम्टम्स. हर एक डिसऑर्डर को कुछ की सिम्टम होता है. आई हैव सो मेनी ट्रिक्स टू रिमेंबर दैट थिंग. तो उस तरह से आपको चीज़ें याद करनी है. DSM-4 की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और DSM-5 की क्या फीचर्स होते हैं वो आपको याद करने हैं. एंड ऑल द रिलेटेड थेरेपीज, ठीक है, स्पेशली साइको एनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक, और इन थ्योरी से बहुत ज़्यादा जल्दी क्वेश्चंस आते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगेन इफ यू आर प्रिपेयरिंग और यू वांट टू प्रिपेयर विद द गाइडेंस एंड विद द लाइक पे guide and forget thing, so you can join my batches. My batches are live right now, ठीक है. संकल्प बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है नवंबर मिड से. रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं. इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो नियर द दिवाली, यू कैन अप्लाई द कोड Diwali30 टू गेट द इंस्टेंट 30% डिस्काउंट, जो कि ऑलरेडी डिस्काउंट प्राइसेस है. इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. इट्स लाइक सुपर दिवाली ऑफर. ऑलराइट, दिवाली ही दिवाली हो गई. एंड इफ यू वांट टू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन राइट नाउ, नवंबर तक वेट नहीं हो रहा है, यू कैन ज्वाइन द महायोद्धा बैच. 2 फायदे होंगे सबसे बड़े. प्रिपरेशन अभी तुरंत स्टार्ट हो जाएगी विदाउट एनी वेस्टेज. एंड संकल्प बैच भी आपको इसमें इंक्लूड मिलेगा. मेरा एक स्पेशल MCQ बैच जिसकी कॉस्ट 3000 रुपीज होती है, वो भी आपको इसमें इंक्लूड मिलेगा. ऑलराइट, तो इसमें भी आप दिवाली 30% ऑफ यूज कर सकते हो कूपन. एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो नॉट इन द दिवाली, बाद में देख रहे हो, तो यू कैन टाइप द कूपन कोड VIPULSIR50. अगेन आई रिपीट, VIPULSIR20. So VIPULSIR20 is the coupon code. You will get the 20% discount instantly anytime. Thank you so much. See you soon in the batch. Bye bye.